Hey, bonjour tout le monde. Je suis super content de te revoir. So, this is the third session in the continuation of the series that we have been working on. So, in the last two lessons, we have learned the pronunciations and we also saw how to make little small sentences. So, from this one video, I would like to incorporate a little change, which is that we will use a new French proverb every day. So, le proverbe du jour est petit à petit, l'oiseau fait son nid. Okay, so let me quickly show it. Comment ça s'est écrit, how it is written, and then we'll discuss a bit of it, and then we continue the session that we have left, the third lesson for the specific session, right? Okay, so this is how you write this petit à petit, l'oiseau. C'est quoi un oiseau? Oiseau is a bird, right? And petit à petit is a word which means little by little, gradually, slowly, right? And fait son nid, which means little by little the bird makes its nest. So this is a little French. It's a very nice French proverb. It says that the progress is always step by step. So even though you create something, it always takes little efforts every day. So with this proverb, we'll begin our third session of the series, which is about. Let me quickly share a screen with you. One second. So in the last video, we learned about the how to make little sentences like this is, these are, all these things, right? So I also gave you certain sentences to practice. So first we will see see those sentences, and afterwards we will begin with our third session, which is going to be little interesting. इसमें हम अपने sentences को थोड़ा सा नया बनाने की कोशिश करेंगे, उसमें कुछ एक नई चीज़ जोड़ेंगे जिससे हमारे सेंटेंस जो है, हमारे सेंटेंस का स्कोप थोड़ा सा बढ़ जाएगा. सो दीज वर द सेंटेंसेस जो हमने लास्ट वीडियो में देखे थे. वो ये सेंटेंसेस थे. इफ़ यू वर फॉलोइंग इट थॉरली यू वुड रिमेंबर कि ये वाले सेंटेंसेस हमने सोचा था कि इनको हम कोशिश करेंगे एंड विल प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेस, है ना? सो फॉर ए क्विक रिव्यू हम फटाफट से ये वाले सेंटेंसेस देख लेते हैं. सो हमने देखा था कि देर आर टू वर्ड्स इन फ्रेंच. से फॉर दिस इज एंड स सो फॉर दीज आर, right? So using these and also incorporating the articles that we learned, right? We learned the articles in French like for masculine, une for feminine, and they for le pluriel, right? Okay, so these are some flowers. How do you write this sentence? Ce sont des फ्लर्स. अब यहाँ पे एक नई चीज निकल के आती है कि दे इज अ वर्ड which which is used for the plurial of the indefinite article. It also means some. So wherever there is some, you use they. जनरली ऐसा होता है कि जब लोग सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, when they kind of translate in their head, which is not a very good practice, but for starting it's very very helpful. तो हम क्या करते हैं, हम some को ट्रांसलेट कर देते हैं quelque से, right? So this is not a correct translation of the word some. So wherever there is some, you use the plurial of the article indéfini, which is des. Ce sont des fleurs. These are some flowers. Now, c'est une maison. मैंने देखा डिक्शनरी में कि the word for house is maison and it is feminine, so I'm using une. C'est une maison. C'est, this is pretty easy. C'est un chat. This is a cat. This is a friend. C'est un ami. C'est un ami rather. So अब ना छोटी छोटी प्रोनाउंसिएशन की चीज़ें जो इस सीरीज के बीच में हम देखेंगे, बट वो वाली प्रोनाउंसिएशंस जो है वो स्लोली हमको आएंगी, राइट? अभी
हम फ्रेंच में हमने अपने क्या कहते हैं, एक्सेंट्स नहीं करें, वो भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, सीरीज में। और हम ये भी देखेंगे कि प्रोनाउंसिएशन जो है ना, दो वर्ड्स के मिलने से कैसे चेंज हो जाती है। सो देर इज अ लिएजोन साउंड इन फ्रेंच ऑल्सो। सो ये सारे बहुत टिपिकल से कॉन्सेप्ट्स हैं दैट कम टू फ्रेंच, बट देन वी विल सी देम slowly and gradually, as we saw the proverb, petit à petit l'oiseau fait son nid, little by little the progress happens, little by little the bird makes its nest. So वर्किंग ऑन दैट अंडरस्टैंडिंग, हम धीरे धीरे इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करेंगे। एक बार में सारी चीज़ इनकॉर्पोरेट कर दें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वोंट लेट बिल्ड द कॉन्फिडेंस, एंड ऑफ कोर्स इट गिव्स एन इम्प्रेशन कि ये तो बहुत टफ है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, स्लोली वी विल इनकॉर्पोरेट ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो। तो अभी फिलहाल के लिए जो हमने लास्ट टाइम ये सेंटेंसेस हमने करे थे, आई सपोज जो लोग फॉलो कर रहे होंगे उनके ये सेंटेंसेस करेक्ट होंगे, और नहीं है सो यू कैन ऑलवेज लीव योर comments and doubts in the comment section below. Okay, so अब हम आगे जाते हैं। Let me quickly share a new screen with you. Just a second. अभी तक जो हम सेंटेंसेस बना पा रहे हैं ना, दोज आर वेरी इजी काइंड, है ना। जैसा हम कैसे सेंटेंसेस बना पा रहे हैं, जैसे दिस इज ए पेन, इट वॉज प्रीटी इजी। हमने बोला से, वी नो द वर्ड फॉर दिस इज से, and then I saw what the pen is. The pen is a stilo, and of course there is no e at the end, and there are no other things that we saw. For example, double N E avec un accent, all these things are not there. So we understand that this is a masculine word in French, and of course in the dictionary we can see this is noun masculine. So we use un, c'est un stylo. अभी तक तो ये वाले सेंटेंसेस बनाने में वे आई थिंक वे आर प्रेटी कॉन्फिडेंट। बट अभी इन सेंटेंसेस का स्कोप बढ़ा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ये नहीं बोलना दिस इज अ पेन, बट मुझे बोलना दिस इज माई पेन, देन व्हाट, देन हाउ डू वी यूज दिस सेंटेंस? दिस इज माई पेन, हाउ डू यू से? सो यहाँ पे एक न्यू कॉन्सेप्ट आ जाता है। This new concept is the possessive adjectives. These are very important in French, and they're slightly different than that of English, है ना? So, so possessive adjectives क्या होते हैं? possessive adjectives ऐसे adjectives जो possession दिखाते हैं। possession कैसे दिखाते हैं? My, your, his, her, है ना? These things are all these words, they all these adjectives they show possession, and therefore they are known as possessive adjectives। ठीक। अब possessive adjectives में हमें दो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है फ्रेंच में। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जैसा कि हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में अब तक देखते हैं कि हर एक वर्ड फ्रेंच में मैस्कुलिन और फेमिनिन है, राइट? फॉर हिंदी स्पीकर्स इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं या जो जिनको हिंदी अच्छे से नहीं आती उनके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, बट इट्स नॉट वेरी टफ, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे ना हमको बोलना है माय पेन, तो हिंदी में हाउ डू यू से मेरा पेन, बिकॉज यू हैव ascribed अ जेंडर टू अ वर्ड, राइट? बट फ्रेंच में एवरी वर्ड हैज अ जेंडर। सो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं ये पता देखता हूँ कि हमारे पास ना फ्रेंच में फॉर माई वी हैव थ्री टाइप्स। वी हैव फॉर masculine we have mo, right? And I'm writing it, I'm writing masculine here so that we know. And then for feminine, we have ma. And for feminine, we have ma. I'm writing fem, which means a feminine word. For plurial, we have me। तो इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, जैसे हिंदी में हम कैसे बात करते हैं कि मेरे पेन्स, मेरी बुक्स, है ना? मेरे पेन, मेरे पेरेंट्स, मेरे दोस्त, या मेरी मम्मी, मेरा भाई, ऐसा। तो हम चेंज कर रहे हैं ना, हर एक वर्ड के जेंडर के हिसाब से हम चेंज कर रहे हैं। तो फ्रेंच में भी सेम चीज़ फॉलो कर रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू से माई पेन, इट डज नॉट मैटर वेदर यू आर अ मैन और अ वुमेन। द थिंग दैट मैटर्स हियर इज कि पेन का, द वर्ड पेन जो है उसका जेंडर क्या है। तो सबसे पहले तो हमें पता है इट्स अ स्टीलो, स्टीलो इज पेन। एंड व्हेन आई सर्च इन द डिक्शनरी, आई विल नो कि भाई जो पेन है ना वो तो मैस्कुलिन नाउन है, दिस इज एन एम, दिस इज नाउन मैस्कुलिन। सो अब मुझे बोलना है मेरा पेन। सो हमने देखा, अच्छा मैस्कुलिन के लिए कौन सा एडजेक्टिव पॉजेसिव होता है? दैट इज मो। सो मो स्टीलो। तो क्या हम इस सेंटेंस में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं यहाँ पे? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। जैसे से
से मो स्टीलो, दिस इज माय पेन, राइट। एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाउस, हमने पिछले मतलब जो सेंटेंसेस है उसमें हमने हाउस का काफी यूज करा था। द वर्ड वाज मेजों, and if I search maison, this is a noun, feminine, right? For feminine noun, my is what? हम यहाँ पे देख लेते हैं, this is ma, right? So अभी मुझे बोलना है this is my house, how would I say? Say ma maison, this is my house, right? Okay, now I want to say this is my father. How would I say this is my father? Say mon père, है ना। पैर, इट कम्स विद एन एक्सेंट, एक्सेंट्स अभी हमने नहीं करे हैं, आगे आने वाले सीरीज में विल डू एक्सेंट्स ऑल्सो। अभी वी आर ट्राइंग टू यू नो अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस, हाउ द लैंग्वेज वर्क्स, एंड देन ऑफ कोर्स हम थोड़े से एडवांस्ड चीज़ें भी देखेंगे, बट स्लोली, नॉट नॉट वेरी फास्ट। ओके, सो से मो पैर, ठीक। नाउ द नेचुरल क्वेश्चन कैन कम हेयर, कैन अराइज हेयर इज कि जब माय के लिए हमारे पास मोमम है, तो फिर योर के लिए क्या है, आर के लिए क्या है, हिज और हर के लिए क्या है। फॉर दैट we'll look a little table that I have created for you guys. Just a second, let me quickly share that table with you. Okay, so this is the little table that we have for les adjectifs possessifs, the French possessive adjectives, right? So for so this je, tu, il, elle, nous, vous are simply nothing but the subject pronouns. ये भी हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं आगे, बट अभी फिलहाल के लिए हमें देखेंगे। So je for I and tu for you and so and so forth. So for my, what you have is mo, ma and me. Let me quickly write it for you also, my or his her, for convenience. So this is these are the three options for the word my. We have mo, ma, me, right? Okay. For the word you, your, we have ton, ta, te, your. And then for the word his and her, we have son, sa, se. And then for our, we have notre, notre, no. For your, we have votre, votre, vo. And for leur, as in their, we have leur, leur, leur. Right? So these वन में naturally question कि इसमें दो बार योर क्यों आया। So ये जो तो ता ते है और ये जो वोत्र वोत्र वो है, इनमें सिर्फ डिफरेंस इतना है, दिस इज फॉर informal and ton tate is for informal and votru votru is for formal. Also you can understand it like this, ton tate is for singular, अगर किसी को बोल रहे हैं your, तुम्हारा, तेरा, but votru votru वो, this one is for plural, like for example आप लोगों का, है ना। so this is your house, जैसा एक कोई फैमिली है उसमें चार पांच लोग हैं और उनको बोलूं this is your house, तब मैं वोत्र का यूज करूंगा इसमें, ठीक है। अब हम कुछ सेंटेंसेस इसके फटाफट से प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। सो दिस इज द टेबल, यू कैन टेक अ स्निपेट ऑफ दिस एंड यूज इट। और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेबल और कुछ एक्सरसाइजेस डाल दूंगा, ठीक है, सो दैट इट कुड बी वेरी बेनिफिशियल। लेट मी क्विकली शेयर द वाइट बोर्ड, एंड उस वाइट बोर्ड पे हम थोड़े से सेंटेंसेस प्रैक्टिस करते हैं, राइट। जस्ट अ सेकेंड। दिस इज द लिटिल वाइट बोर्ड दैट वी हैव फॉर आवर प्रैक्टिस। तो अभी हम कुछ सेंटेंसेस लेके देखते हैं, राइट। तो कैसे सेंटेंसेस देखेंगे, जैसे सबसे पहले दीज आर वाला करते हैं, बिकॉज ये थोड़ा हमसे मिस आउट सा हो रहा था। दीज आर माय पेरेंट्स, है ना, दीज आर माय पेरेंट्स। सो मैं कैसे बोलूंगा, ce sont, दीज आर, एंड देन पेरेंट्स के लिए जो वर्ड होता है फ्रेंच में, दैट इज पारों ओनली, प्रोनाउंस इट स्लाइटली डिफरेंटली। ऐसा कि हमने जब हम प्रोनाउंसिएशंस कर रहे थे तब हमने क्या पढ़ा था कि ए एन ओ एन ई एन कहीं भी आया था तो साउंड इज ओ, सो पारों, एंड ऑफ कोर्स ई एन बिकम्स nasal साउंड, और वॉवल की साउंड है तो हम यहीं पे रोक देंगे, पारों, ce sont mes parents, ठीक है। अभी जैसे आ जाता है, सो दिस इज योर कार, ठीक है।
सो हमें पता है दिस इसके लिए द वर्ड इज से, अब तक तो लर्न हो गया होगा. योर कार, द वर्ड फॉर कार in French is voiture, and there is an e at the end, which is not an exception here. So this is feminine. So your, अभी हम टेबल पे फटाफट जाएंगे तो हम देखेंगे टेबल में द वर्ड फॉर योर इन सिंगुलर फॉर्म इज ता. सो से ता what you, easy peasy. अच्छा, देर इज वन मोर थिंग अबाउट दिस एडजेक्टिव पोजेसिव, ठीक है, दैट वी विल डू इन द कमिंग सेशन. पहले हम बस इतने की प्रैक्टिस कर लेते हैं. आई विल पुट डाउन सर्टेन सेंटेंसेज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, एंड आई विल ऑल्सो पुट इन दिस इमेज दैट आई हैव जनरेटेड. सो इस वाली इमेज से थोड़ा हेल्प हो जाएगा एंड इट वुड बी अ रेडी हैंडी रेफरेंस फॉर यू गाइस. ठीक है, आई थिंक वी आर गुड फॉर टुडे. बाकी आई वुड लाइक यू टू बी क्रिएटिव, फाइंड योर ओन वर्ड्स, यूज माई, योर, हिज, हर. जैसे कि हम बात कर सकते हैं कंप्यूटर की, जैसे कि हम बात कर सकते हैं डॉग की, दिस इज माई डॉग. एंड हम बात कर सकते हैं नोटबुक की. और यू कैन बी क्रिएटिव, एटसेट्रा, एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यू कैन यूज. पर एक छोटी सी एक्सेप्शन है इसके अंदर, मतलब एक छोटा सा एक्सेप्शन रूल है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में. और ऐसा मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ सो एज टू मेक इट इजी एंड शॉर्ट एंड हैंडी टू लर्न, राइट. बट अभी फिलहाल के लिए हम ये कुछ जो सेंटेंसेस हमने, जो वर्ड्स हमने लिखे हैं, इनसे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे. आई विल ऑल्सो upload some sentences for you to practice in the description. You can practice and upload your answers in the comments. I'll see it and I can help you and assist you with those. Okay, thank you very much. That is all for today. Merci beaucoup.